ethical principle. First है ethical principle. All clinical must be follow ethical standards based on the declarations of Helsinki. Dignity, right, safety and well-being of trials पार्टिसिपेंट्स आर द टॉप प्रायोरिटी। मतलब कि जो हमारे पार्टिसिपेंट होने चाहिए उनकी सेफ्टी डिग्निटी और राइट्स के टॉप पे रखना चाहिए। रिस्क बेनिफिट, सेकंड रिस्क बेनिफिट, एनी पोटेंशियल रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी लेस देन द पोटेंशियल बेनिफिट्स। मतलब कि जो हमारे पोटेंशियल रिस्क हो पोटेंशियल बेनिफिट से कम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेंट राइट, सेफ्टी एंड प्राइवेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। पार्टिसिपेंट के राइट, सेफ्टी एंड प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Educate testing on human can only being after through lab and animals studies are completed. Fifth protocol, all detailed scientific and approved plan. Protocol must be strictly followed. मतलब कि जो भी साइंटिफिक डिटेल और अप्रूव्ड प्लान होने चाहिए उनको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। IRB IC ये एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी है। जो एथिक कमेटी मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द ट्रायल प्लान बिफोर इट स्टार्ट्स। मेडिकल केयर, पार्टिसिपेंट्स नीड गुड मेडिकल केयर एंड मस्ट हैव एनी सेफ्टी इश्यूज क्विकली एड्रेस। मतलब कि जो पार्टिसिपेंट होने चाहिए उनको गुड मेडिकल केयर की नीड होती है और जो सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं उनको क्विकली एड्रेस करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए। Informed consent, informed participant must voluntarily give their agreement after fully understanding the trial's purpose, risk and benefits. Record keeping, all trial information reports must be kept accurate, complete and verifiable for accountability. Confidentiality, participant personal and medical information must be kept private and secure. Investigational product, the drug or device being tested correctly according to good manufacturing practice GMP. Quality assurance, proper quality system must be in place to ensure the trial is accurate and meets GCP standard, GCP good clinical practice. Thank you. Conclusion. Conclusion, a clinical trial for a new drug is conducted in human volunteers following ICH and GCP guidelines after preclinical studies. The investigational drug goes through phase 1 to 4 to assess its pharmacokinetics, pharmacodynamics, side effects and safety, including post-marketing surveillance. Thank you. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चों के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। उसके बाद है थर्ड ग्रुप बी, जिनका टॉपिक था द इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स ऑन हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज, जिसमें है सोहेल अली, मिथुन सिंह, यासिर, अथर्व मिश्रा। प्लीज कम। A very good morning to respected Chairman sir for providing this atmosphere, and a good morning to administrative officer, doctors, HR madams and the teachers, non-teaching staff and the dear students. First of all, wish you all a very happy Pharmacist Day. Imagine we are taking our drugs to treat our or to protect our heart, but in case those very drugs start increasing our blood glucose level. Myself, Athar Misra, along with my dear friend Yasir, Sohel and Mithun would like to bring your attention here. It's a feeling of an honor to represent our poster on a Pharmacist Day on a topic, the impact of cardiovascular drugs on hyperglycemia and diabetes. Our poster highlights how commonly used cardiovascular drug influence the blood sugar level.
Our aim to create the awareness about the balance between therapeutic benefits and metabolic side effects. So that as the future pharmacist, we ensure the safe and more effective medicine for the patient. First of all, a question arises in our mind, that is, what is diabetes and what is hyperglycemia? So diabetes, the other name of diabetes is diabetes mellitus, a metabolic disorder in which our body becomes insulin resistant and it does not produce enough insulin as the amount required for the body to maintain the blood glucose level. On the other hand, hyperglycemia, it is a condition in which our body either for a short period of time or a long period of time, it can vary. या तो हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज लेवल राइज होगा या थोड़ी कम देर के लिए भी हो सकता है, वो वेरी करता है कंडीशन पर. सो ये हमारा डिजीज है जो क्योर हो सकता है, बट डायबिटीज हमारा क्योर नहीं हो सकता है, उसको हम केवल प्रिवेंट कर सकते हैं. इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का मेन टॉपिक ये है कि अगर हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग को लेने के बाद अगर हमें डायबिटीज हो रही है, ऐसी कौन सी मेडिसिन लें जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज को भी ठीक करे और डायबिटीज को इंक्रीज ना करे. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हम पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन बॉडी की क्या होती है. When we take food enters into our body and food is converted into a glucose. Glucose provides us energy and that energy is provided in the form of ATP, adenosine triphosphate. So the molecules of ATP in our body gets more and it results in the balance of the potassium channel, and the potassium ions in our body are not balanced. So it triggers the calcium channel further and calcium channel promotes the production of the insulin. अब जैसा कि हमारा इंसुलिन बन रहा है बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमारा नॉर्मल चल रहा है अभी तक, डायबिटीज हमको नहीं है, ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशन. अब हम चलते हैं ड्रग्स की तरफ प्रोसीड करेंगे. कैसे ड्रग्स जो हम ले रहे हैं वो हमको डायबिटीज करा सकते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी इन दिस ड्रग इज डायरेटिक्स. बेसिकली डायरेटिक्स आर दोस ड्रग्स विच इंक्रीजेस आवर यूरिन आउटपुट. यूरिन जो ड्रग्स हमारे बढ़ाते हैं वो डायरेटिक्स हैं. नाउ हाउ दे अफेक्ट आवर डायबिटीज. सो जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि हमारा जो मेन काम था वो पोटेशियम आयंस कर रहे थे. पोटेशियम आयंस जब तक बॉडी में थे इंसुलिन बन रहा था, लेकिन ये डायरेटिक्स क्या करते हैं? डायरेटिक्स decreases or inhibits the absorption of the reabsorption of our potassium ion. अब जैसा कि ये है कि पोटेशियम आयन हमारे बॉडी में कम हो गए तो वो आगे कैल्शियम आयंस के चैनल को ओपन नहीं होने देंगे, और जब कैल्शियम चैनल हमारे ओपन नहीं होंगे तो उसके चक्कर में हमारा इंसुलिन जितना हमको रिक्वायर्ड था उस अमाउंट में बन नहीं पाएगा. सो हमें डायरेटिक्स अवॉइड करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, और अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमको थायराइड्स को इग्नोर करके हमें पोटेशियम स्पेयरिंग की तरफ जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्पाइरोलैक्टोन, द बेस्ट डायरेटिक्स. अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसकी तरफ जाएंगे तो आपको डायबिटिक्स पे असर नहीं होगा और आपका हाइपरटेंशन भी सही हो जाएगा. मूविंग फर्दर, अगला हमारा टॉपिक है बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं. बीटा रिसेप्टर हमारी बॉडी में दो होते हैं, बीटा 1, बीटा 2. बीटा 2 हमारा पेनक्रियास में पाया जाता है. जैसा कि हमने अभी तक देखा कि पेनक्रियास ही हमारा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे बीटा सेल्स हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस चक्कर में हमारा इंसुलिन बनना फिर से कम हो जाएगा और फिर से वही बात कि डायबिटीज विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन. द नेक्स्ट ड्रग इज स्टैटिन्स. स्टैटिन्स हमारे वो ड्रग्स हैं. स्टैटिन्स आर दोस कैटेगरी ऑफ ड्रग which are used to treat cholesterol, but they are also can cause diabetes. Now the main topic is how they cause. कैसे करते हैं वो? तो मेन कॉज उनका ये है, दे इनहिबिट द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज. कहने का मतलब ये है कि वो ग्लूकोज को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं. ग्लूकोज हमारा ऊपर नहीं जा पा रहा है सेल्स में. देन द ग्लूकोज विल रिमेन इन द ब्लड एंड ग्लूकोज लेवल अगेन विल राइज. The next two are niacin and anti-aromatics. Niacin are the vitamin B3 and anti-aromatics are those drugs which are used to maintain the heart rhythm. So they can also contribute to the drugs. Now proceeding further, predictors of the risk. कि कैसे हम predict कर सकते हैं, क्या क्या causes हैं, family history है, तो ये diabetes कैसे हो रहा है. That will be explained by the Sohail. अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी डायबिटीज़ है, पेरेंट्स में मान लीजिए दो में से एक को, मदर को या फादर को, किसी को भी डायबिटीज़ है, तो पेशेंट में चांसेस रहेंगे 40% डायबिटीज़ ट्रांसफ़र होने के. अगर पेशेंट के मदर फादर दोनों में डायबिटीज़ है तो चांसेस इंक्रीज होकर 70 to 80% हो जाएंगे.
जैसा कि आप और भी देख रहे हैं, और भी फैक्टर मेंशन है हमारे, हाई डोज, ओवरडोज. फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इफ वी हैव टेकन द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द लार्ज अमाउंट, दे मे डिस्टर्ब आवर ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकोज विल राइज अगेन इन आवर बॉडी एंड मे प्रमोट डायबिटीज. द फर्दर इज वन इज लाइफस्टाइल एंड एज. लाइफस्टाइल भी कैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं. अगर हम लोग लेजी हैं, कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वी आर आइडल लाइंग ऑन द बेड, वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज, इट मे प्रमोट आवर ग्लूकोज लेवल वंस अगेन. एंड एज, जैसा कि सभी को पता है, हम जब बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उस लेवल के नहीं बन पाते हैं, या उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है. तो बीटा पेनक्रियाटिक सेल हमारा स्लो हो जाता है. बीटा पेनक्रियाटिक सेल के चक्कर में इंसुलिन अगेन नहीं बन पा रहा है और फिर से हमारा ग्लूकोज लेवल की दिक्कत आ रही है. जैसा कि आप ग्राफ देख रहे होंगे, सारे मेंशन है नीचे, थायराइड, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन, नियासिन. तो हमने यहाँ पे कोशिश की है आपको ये समझाने की ग्राफ के माध्यम से कि ये जो थायराइड डायबिटिक्स हैं, अगर आपको डायबिटीज पहले से है तो आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए. बीटा ब्लॉकर का रेशियो हमारा 20 के अप्रॉक्स जा रहा है, स्टैटिन का हमारा 10 के पास जा रहा है, नियासिन अगेन 25 जा रहा है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए. और एंटी एरोमेटिक सबसे सेफ है जो कि 5 के बिलो है. तो हमें ट्राई करना चाहिए, हमें प्रीफर करना चाहिए कि हम एंटी एरोमेटिक्स लें. अब प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग, कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको मॉनिटर किया जा सकता है. प्रिवेंशन के लिए फिर से वही बात है कि हमको अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए. वी नीड टू प्लान अवर डाइट अकॉर्डिंग टू अवर डायबिटिक कंडीशन. फॉर एग्जांपल, वी नीड टू इनहिबिट अवर प्रोटीन इंटेक. प्रोटीन का इंटेक कम से कम करना चाहिए. We can use carbohydrate, but the carbohydrates should be of low incitex, and the rest fibers. Fibers आप जितना ले सकते हैं उतना बेटर है, because fibers are the those category which inhibits the absorption of glucose. अब जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में उतना एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही नहीं बॉडी में. उसके अलावा HbA1c हमारी हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि हमको डायग्नोसिस करने में हमें हेल्प करती है. ये हमारा एवरेज 3 मंथ का पीरियड होता है. हम 3 मंथ के एवरेज पे अपना डायबिटीज चेक करा सकते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं. तो अभी तक हमने जैसा देखा, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स आर एसेंशियल, वो हमको लेने ही पड़ते हैं, लेकिन हमारा ये ठीक है. तो इस क्लासेस मतलब ये जो टेस्ट होगा उसमें जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, उन टॉप 3 स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हमारी रिनाउंड बुक, जो मॉड्यूल्स की कुछ बुक्स हैं जीपैट प्रिपरेशंस को लेके, वो बुक्स आपके कॉलेज एड्रेस पे भिजवाई जाएंगी. साथ में सभी बच्चों के लिए फ्री गिव अवे भी है, सभी को ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. साथ में उड़ान की टेस्ट सीरीज है जो बहुत ही renowned टेस्ट सीरीज है फॉर जीपैट प्रिपरेशन, दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड टू यू ऑल गाइस. ओके, सो क्या करना है, आप सभी को पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है. आप मेक श्योर हो जाइएगा कि आप ग्रुप पे जुड़ जाएं, ताकि हम उस ग्रुप पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता सके कि आपको फर्दर कैसे कनेक्ट होना है फॉर कॉलेज लेवल टेस्ट. ओके, और आपको करना क्या, आपको जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है. प्ले स्टोर में वो आसानी से आपको मिल जाएगा. ऐप में जाके आपको बैचेस आइकन में क्लिक करना है. देन टू द राइट साइड देयर इज अ प्लस साइन, उस प्लस साइन में क्लिक करेंगे, आप बैच कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज OBCOP, वन बीट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, OBCOP. आप इस बैच कोड को अप्लाई करेंगे एंड देयर यू आर रेडी फॉर द टेस्ट. साथ में आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जीडीसी क्लासेस ऐप में एक फ्री कोर्स भी है, फार्मा नेशन. उस नाम जो फार्मा नेशन है उसमें आपको सारे फार्मेसी से रिलेटेड, इवन अगर वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो, नाइपर के एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, या आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें मोर देन 1 लाख MCQ बैंक आपको मिलेंगे, जो आपके कहीं ना कहीं कॉलेज लेवल टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. उस फार्मा नेशन के अंदर आपको सभी तरीके के क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे, देन आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी दी गई हैं. तो मेक श्योर कि जब आप जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें तो यू कैन सर्च फॉर फार्मा नेशन एज वेल, और वो फ्री कोर्स है, आप उसको क्लिक करके अवेल कर सकते हैं और वो प्रोसेस कर सकते हैं. ओके, सो just give me few minutes and Piyush sir will be joining us soon and he will start the session. Till then I request Anup sir कि जितने भी स्टूडेंट्स सेमिनार हॉल में बैठे हैं, प्लीज तब तक आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में ऐड करा दीजिए और जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए. Thank you so much. Just give me few minutes and sir will be joining with us.
So, thank you to all respected dignitaries presented here. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन वनवीर प्रांगण में। तो समस्त अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्लीज सर, मैम, प्लीज। सारे बच्चे दीप प्रज्वलन खड़े हो जाएंगे। एक बार समस्त अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वेरी थैंक यू मैम, आपने इतना अमूल्य समय निकाला हम लोगों के लिए। तो इस स्वागत की कड़ी में सबसे पहले हम डॉक्टर विश्वजीत दास सर को इनवाइट करेंगे कि टू प्रेजेंट अ बुके एंड बैच टू द रेस्पेक्टेड डीआई मैम। सर प्लीज।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इसके बाद हम रिक्वेस्ट अनूप सर से कि राजदीप सर जनरल मैनेजर वन को सम्मानित करें। अनूप सर प्लीज। उसके बाद हम रूमा मैम से रिक्वेस्ट कि रिचा मैम असिस्टेंट जनरल मैनेजर वनबीट ग्रुप को सम्मानित करें। रूमा मैम। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे विनोद कुमार सिंह सर से कि गुरुपाल सर को HR वनबीट मेडिकल ग्रुप को सम्मानित करें। विनोद सर प्लीज। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे अभिजीत सहाना सर से कि सर अभिजीत सहाना सर प्रिंसिपल हम रिक्वेस्ट करेंगे नर्सिंग कॉलेज को सम्मानित करें। रूमा ये सही नहीं है। हेलो 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 हेलो। ठीक है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूजा श्रीवास्तव मैम से। पूजा मैम। एनी मैम वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज को सम्मानित करें। पूजा मैम। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद रावत सर से मिस्टर अमित पाल सर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज वनबीट ग्रुप को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमीत मैम से राजविंदर कौर मैम नर्सिंग कोऑर्डिनेटर वनबीट हॉस्पिटल को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। तालियों के लिए कहना ना पड़े। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूजा मैम से। पूजा मैम। परविंदर कौर मैम नर्सिंग कोऑर्डिनेटर वनबीट हॉस्पिटल को आप सम्मानित करें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगेश कुमार देवांगन सर से आलोक गौतम सर HOD वनबीट पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट को सम्मानित करें। आलोक सर, योगेश सर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये इवेंट आपका है, प्रूव करिए। यू आर फार्मासिस्ट। वेरी गुड।
उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद सर को सम्मानित करूंगा, डॉक्टर विश्वजीत दास सर, प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सॉरी। आप लोगों का एक जीडीसी वाला सेशन होना है, उसको पीयूष सर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। के लिए सोच रहे हैं उनका आपने फोटोशॉप, ड्रॉ में के साथ साथ में जरूर से लेके चलनी चाहिए, तभी जाके फ्यूचर में हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। तो आज का सेशन इसी पे बेस्ड है, कैरियर गाइडेंस, जीपैट एग्जाम प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। आपके सामने बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, हमें चूज करना होगा कि आने वाले समय में हम किस ओर जाने वाले हैं। हमें अगर वो जॉब्स चाहिए रहेगी तो जॉब्स के लिए हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर मुझे फार्मा एमबीए के लिए जाना होगा तो फार्मा एमबीए के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। साथ ही साथ अगर आपने फ्यूचर जीपैट और नाइपर को अगर आपने टारगेट किया है तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे नाइपर से पढ़ाई करनी है, मुझे नाइपर से एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है। आईसीटी मुंबई, आईआईटी बीएचयू जैसे इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे जाके आप अपना कैरियर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट की वैसी सोच होती है कि जीपैट एग्जाम का मतलब होता है एमफॉर्म करना। बेटा एक चीज अगर मैं आपको बता दूं कि जीपैट एग्जाम की प्रिपरेशन आप अगर करते हो तो आने वाले समय में जितने फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एम्स फार्मासिस्ट हो, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट हो या अलग अलग सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर, और भी कई सारे पोस्ट आते ही जा रहे हैं, तो उन पोस्ट की भी प्रिपरेशन आपकी इसी जगह से होनी है, क्योंकि सिलेबस वही है जो आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में स्टडी कर रहे हो। वही फार्मास्यूटिक्स, वही कोलॉजी, वही कोग्नोसी, वही केमिस्ट्री। हमें अपने सिलेबस को कॉम्पिटिटिव अप्रोच की ओर में लेके जाना होगा, तभी जाके हम आने वाले समय में ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट हो या नाइपर जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा बेटा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके इस रिजल्ट को पूरा भी करते हैं। आपके सामने वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नाइपर 2025 में अपना टॉप 10 रैंक सिक्योर किया। इसी तरह से जीपैट के भी बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 4 सालों से नाइपर का फर्स्ट रैंक एमएस फॉर्म में हमारे यहाँ से है। जीपैट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस रिजल्ट को बनाने के लिए ढेर सारी मेहनत की और आज ये इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में भी हैं।
आपके सामने वो सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आज इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको भी अपने कॉलेज लेवल पे आपको इस तरीके का रिजल्ट बनाना है और आपका जो भी टारगेट है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ साथ में लेके जाना है। बहुत सारे बच्चों की ऐसी भी सोच होती है कि मुझे बी फॉर्म के बाद में जॉब के लिए जाना है, तो बिल्कुल जॉब के लिए जाओ, लेकिन जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करके जाओ, क्योंकि जीपैट के एग्जाम के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल की होती है। क्या पता जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाओगे तो आपको ये नीड महसूस होगी कि हाँ शायद अगर मैं इसको कर लेता तो आने वाले समय में आप इजीली एमफॉर्म भी कर पाओगे। तो इसीलिए अपने लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन कर रखनी चाहिए और इस चीज के लिए हमें हमेशा प्रयास बिल्कुल करते ही रहना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आपके सेमेस्टर्स की, कि आप अपने सेमेस्टर्स में किन किन चीजों को स्टडी करते हो और आपके सिलेबस में क्या होता है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोगों ने 11th और 12th में किया था, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है। बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो तो एचएपी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का 2 सेमेस्टर में, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी आ जाता है। फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर से इंट्रोड्यूस होता है और मेडिकम आपका जो है 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। इट मींस मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द जीपैट एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके 5th सेमेस्टर तक में बहुत सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होते हो। इट मींस प्रिपरेशन का जो राइट टाइम है आपका सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर, इस जगह से आपने अपनी प्रिपरेशन को लेके सोचने लग जाना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल 10 क्वेश्चंस लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते ही आते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है, इस साल 16 क्वेश्चन अकेले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से पूछे गए हुए हैं और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको डे बाय डे करके आपको एक एक करके स्टडी करना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए और इसको लेके हमें प्रिपरेशन भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उस प्रिपरेशन को करने के लिए आपका अप्रोच क्या होगा। बेटा हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो इसे ट्रिक बेस्ड बनाना होगा। जैसे स्क्रीन के सामने अल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है। मैंने बोला आईटी के बच्चों का आईक्यू स्ट्रांग होता है क्योंकि वो पढ़ने में पारंगत होते हैं। अब देखो इसके पहले लेटर्स को देखो, आईआईटी, इंडोल, आइसोक्विनोलिन और ट्रोपेनल क्लोराइड्स, कास से अल्कलॉइडल अमीन, इमिडाजोल, क्विनोलिन, क्विनाजोलिन और सारे के सारे ड्रग्स आपके सेट हो जाएंगे। और अगर हमें नाइपर जाना है तो इंडोल अल्कलॉइड्स अच्छे से पढ़ लो। Niper is the trick to remember all the indole alkaloids, Max Vomica, Vinca, Physostigma, Ergot और रोल्फिया। सारे के सारे जो ये ड्रग्स हैं ये सभी इंडोल अल्कलॉइड्स के अंडर में आएंगे और हमें इसी तरह से प्लान करके इन सारी चीजों को स्टडी भी करनी है। अब देखो एक प्लांट है पिलोकार्पस। स्टूडेंट का स्टडी करने का तरीका बिल्कुल ऐसा होता है कि हम सारी चीजों को थ्योरेटिकल स्टडी करें। मैंने इसी पिलोकार्पस के नाम को ट्रिक बना दिया और इसी पिलोकार्पस में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। पी फॉर पिलोकार्पिन, एल फॉर लीव्स, ओ फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इट मींस ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। कोई एनर्जिक ड्रग है, एट्रोपिन एंटागोनिस्ट और रूटेसी फैमिली का ड्रग। तो ऐसे ट्रिक्स अगर हम लोग बना ले तो हम चीजों को इजी बना सकते हैं। एमपी को लेजी मैन बोट नहीं करता है। सारे के सारे फेशियल बोन्स आपको इसके अंदर में आ जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन कौन से मेडिसिन है, पेरिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, पायराजिनामाइड, इथम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, एसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑल आर द फर्स्ट लाइन ड्रग। मैंने बोला पी फॉर पायराजिनामाइड, पी फॉर पेन इन जॉइंट्स। इस मींस इस ड्रग के लेने की वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम आती है। ई फॉर इथम्बुटोल, ई फॉर आई टॉक्सिसिटी, रेड ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट होने में प्रॉब्लम आएगा। डॉक्टर देगा रिफाम्पिसिन और बताएगा कि ऑरेंज रेड यूरिन आएगा, परेशान मत होना, और ये इस मेडिसिन की वजह से है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इससे याद हो जाएगा, डी फॉर डीएनए, आर फॉर आरएनए। दिस ड्रग इनहिबिट्स द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिनको हमें डेली लाइफ में लेके आना होगा ताकि हम अपनी स्टडी को और भी इजी और भी आसान बना सकें।
टी का कप साइकिल पर थियासीटाजोन, इथ्यूनामाइड, एमिकासिन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन और पारामिनोसैलिसिलिक एसिड, ऑल आर द सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। और इससे अच्छी प्रिपरेशन आप इन ट्रिक वाइज में बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन अपरेटस की। डिसोल्यूशन अपरेटस, सारे के सारे ये डिसोल्यूशन अपरेटस आप इस साइकिल के हेल्प से हमेशा के लिए रिमेंबर कर सकते हो। साइकिल में देखो सबसे आगे है बास्केट, दूसरे नंबर पे आ जाता है पैडल, तीसरे नंबर पे इस सिलेंडर को उल्टा कर दो तो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, चौथे नंबर पे चेन की फ्लो होती है तो फ्लो थ्रू सेल, पांचवें नंबर पे साइकिल की डिस्क है तो पैडल ओवर द डिस्क, छठे नंबर पे सिलेंडर है और सातवें नंबर पे हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। इट मींस हम इन ट्रिक के हेल्प से भी आसानी तरीके से सारे के सारे डिसोल्यूशन अपरेटस को रिमेंबर भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 2022, इंडियन फार्माकोपिया का पहले क्या होता था कि टाइप फर्स्ट पैडल हुआ करता था और टाइप 2 बास्केट होता था, लेकिन आज के डेट पे जो टाइप फर्स्ट है हमारा बास्केट है, टाइप 2 हमारा क्या हो जाएगा पैडल होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फार्माकोपिया। बेटा आप जो स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम सभी को इसी चीज को सीखना है। Why GPAT is important and what are the benefits of the GPAT exam preparation? GPAT एग्जाम की प्रिपरेशन आप करोगे, फ्यूचर में फायदा आपको होगा। टीचर्स हो या कॉलेज हो या हम लोग हो, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं कि बेटा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तुम्हें इससे फायदा होगा। आपके अलावा लिटरली मैं बता दूं, आपके अलावा इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। टीचर्स आप पे प्राउड फील कर पाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ का बच्चा था और देखो ये क्वालिफाई हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ना कॉलेज को, ना टीचर को या किसी और को। इवन आपके बगल में जो बैठा हुआ दोस्त आपका है उसको भी कोई फायदा होगा नहीं। हम आज जो कुछ भी मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, खुद के लिए करते हैं। इसी चीज को समझना है। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना कि मुझे ये एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्या फायदा होगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपनी चीजें खुद से तैयार कर सकता है। इसके लिए कोई आसमान से तारे नहीं तोड़ने होते हैं। हमें अपनी सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को बहुत ही आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। अभी के भी सेशन अभी चल रहा, बहुत सारे बच्चे अच्छे से इसको सुन भी रहे होंगे ध्यान से, और बहुत सारे बच्चों के लिए ये कुछ भी नहीं होगा, जैसे इंटरटेनमेंट जैसा हमेशा कि कितनी जल्दी अभी का सेशन ये खत्म हो और हम भाग जाएं, सेशन से बाहर जाएं और मस्ती करें, तो उनका टारगेट इतना ही होगा। बेटा आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। अगर आपने ये चीज अच्छी लग रही है तो अपने खुद के लिए प्रिपरेशन करो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बेटा आने वाले समय में आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। जीपैट एग्जाम मुझे इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने से 12,400 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है 2 साल तक, आपको मिलेगा बस, और किसी को नहीं मिलने वाला। इंडिया में कोई तो एक एग्जामिनेशन है फार्मेसी का जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, एग्जाम को निकाल लेना चाहिए। आपकी सीवी में एक लाइन, आपके रिज्यूम में एक लाइन जुड़ जाएगा कि आप जीपैट क्वालिफाई हो। कहीं पे भी जाओगे, चाहे टीचिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे जॉब हो, चाहे कहीं पे भी, आपको एक अलग ही नजरिए से देखा जाएगा। जीपैट मुझे इसलिए क्वालिफाई करना है क्योंकि मुझे नाइपर से फार्मा एमबीए करना है, मुझे नाइपर से प्लेसमेंट लेना है, मुझे नाइपर से एमफॉर्म करना है, आईसीटी मुंबई, आईआईटी, बीएचयू और भी ऐसे इंडिया के कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे पहुंचना मेरा ड्रीम है। और अगर बेटा ऐसा सोच के रखे हो तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाओ, मेहनत करो और इस एग्जाम को खुद के लिए क्वालिफाई करो। इस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है बताना चाहूंगा। इस एग्जामिनेशन में टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है और टोटल 125 into 4 = 500 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। ये 3 घंटे का पेपर है। NBEMS इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। All the B.Pharm third year and final year students are officially eligible for this examination. एग्जामिनेशन का टाइम जो है मई में होता है, अप्रैल का लास्ट या मई के लास्ट में इसका एग्जाम होता है।
मतलब अगर अभी से जोड़ के देखो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 4 महीने उधर मान के चलो, 7 से 8 महीने का समय है। जितने भी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूर से सोचिए, मेहनत करके निकालने की पूरी कोशिश करिए। All the third year and final year students are officially eligible for this examination. मेहनत करो और खुद के लिए इस एग्जाम को क्लियर करो, जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी जो वैल्यू करो और आने वाले समय के लिए खुद के लिए अच्छा करने की जो कोशिश भी करो। जीपैट एग्जाम का सिलेबस अगर मैं बताना चाहूंगा, फार्मास्यूटिक्सोलॉजी जो पूरे सेमेस्टर में आप स्टडी करते हो, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सुटिक्स है, इकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कोग्नोसी है और बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को हमें एक एक करके करना रहता है। बेटा मैं आप लोगों की एक इंफॉर्मेशन है बताना चाहूंगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जीडीसी क्लासेस ऐप को जरूर से इस्तेमाल भी करते होंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक हमारा एक कोर्स है फार्मा नेशन, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 500 से ज्यादा वीडियोस, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करो या जीपैट के प्रीवियस, हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन, सीवी का फॉर्मेट, जॉब्स का न्यूज और भी ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जीडीसी फार्मा नेशन में आपको मिल जाएंगी। और एक चीज बहुत ही खास है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऐप को डाउनलोड करना और फार्मा नेशन कोर्स में जरूर से ज्वाइन कर लेना। चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बी.फार्म के स्टूडेंट्स हो, हर किसी के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज फार्मा नेशन, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फार्मासिस्ट डे के रूप में, डे के दिन ऐसी चीज का मिल जाना जहां पे इतने सारे बेनिफिट्स हो और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो सभी इसको हेलो, जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे सभी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसके साथ में ही हमारी संस्था में ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स या स्टाफ मेंबर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो लोग हमारा ब्लड डोनेशन कैंप इस समय जो फार्मेसी कॉलेज में लगा हुआ है, वो यहाँ से कैंप में पहुँच के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो भी ब्लड देने के लिए जिन्होंने अपना नाम दिया है, वो स्टूडेंट्स यहाँ से भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और बाकी इसी के साथ में हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम डांस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टेज पे आ जाइए। वेलकम डांस। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम।
बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्चों का। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, इस बार जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम रखी गई है, थिंक हेल्थ और थिंक फार्मासिस्ट, वो इसलिए भी रखी गई है आज के टाइम पे। दरअसल हम लोग शायद आप में से सभी लोग आजकल की अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि थोड़ा बहुत जो हम लोगों की कभी कभी हेल्थ खराब हो जाती है, हम लोग उसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हुए कि ठीक है आज नहीं कल सही हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग जो है इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट 2025 में थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट थीम के साथ में इसको मना रहे हैं। और बहुत ज्यादा समय ना लेके हम सीधा डॉक्टर विश्वजीत दास, प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी को इनवाइट करेंगे कि वो एक बार आए और अपनी वैल्यूएबल स्पीच दें। थैंक यू सर। Respected Inspector of Drugs, Lakhimpur Kheri, General Manager One Bit Hospital, Assistant General Manager One Bit Group, Professor Vimla B, Principal One Bit College of Medical Science Nursing College, Administration in charge One Bit College of Medical Science, HR Head One Bit College One Bit Group, and all other professors, assistant professor, my dear pharmacist present over here, and all my dear students, wishing you a happy Pharmacist Day. We are gathering here to celebrate the Pharmacist Day. Today, in 25th September, we all know globally we are celebrating Pharmacist Day on 25th September. Not only India, across the world we are celebrating the Pharmacist Day. And this year the theme is Think Health, Think Pharmacist. That means a lot. If you are health conscious, then you are thinking about the pharmacist. What is health and how the pharmacist and what they are doing. This is the main thing. How we are improving the health. Here Pharmacy Council of India has focused in some topics that how the pharmacist can improve their health. First one is right drug, right dose and right person. Right drug, right dose and right person. That is a very important thing. I am going to the only points. What is the right drugs? Because if a patient is not getting the appropriate drug, we the pharmacist after diagnosis able to know that which kind of disease suffered by a particular patient. If we know that which disease was suffered by the patient from the physicians, then we can provide them the appropriate drug. That is the right drug. हम लोग पेशेंट को राइट ड्रग दे सकते हैं अगर हमें डिजीज के बारे में पता चलेगा, लेकिन हमें डिजीज क्या हुआ है उस चीज की जानकारी फिजिशियंस एंड कुछ टेस्ट से लेना होता है. And right dosage for right dose, actually this right dose was skipped by the physicians many times. Right dose, that means if my body weight is more than 110 kilo, then will I take paracetamol 500 mg one, or will I take paracetamol 1000 mg? If a 50 kg weight person is taking paracetamol 500 mg, then is it appropriate dose to take paracetamol 500 mg for a 150 kg person? So dose. Sometimes what happens, कभी जल्दबाजी में डॉक्टर्स लिख देते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट है उनको आप एडल्ट का डोज दे दिए, then who is going to monitor that thing? The pharmacist is the only person. वो आपको वहां पे मॉनिटर करेंगे उनको राइट डोसेज देने के लिए. एंड राइट पर्सन, many things are there, many drugs are only intended for particular female and male persons. My pharmacist friends, they can tell how they are dispensing.
during the dispensing, many things we have to keep in the mind, that whether the drugs having the adverse effect, because each and every time I am telling, when a patient is going to a hospital or near the doctors, he has a lot of multiple diseases. Once he visit to the doctor, he will tell that I have fever, I have some loose motion, I am also suffering from that particular disease. So once he is visiting by paying 500 rupees, then he is telling anything. Then doctor is writing according to the disease. If a person is suffering from multiple diseases, then doctor is writing according to the disease. So at that time the drugs the patient is taking, whether there is a drug interaction, दो ड्रग के बीच में कुछ इफेक्ट है या नहीं है, जब फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करते हैं उसी समय उनको देखना रहता है कि डॉक्टर्स ने तो लिख दिया है, तब वो फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, सर आपने ये लिख दिया है, वेदर देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इज देयर और नॉट. Then manufacture and ensure the quality of the medicines. Nowadays, this is a big question mark to the society. Manufacturing part and the quality part, because there are many questions arises to the different peoples. बहुत लोग आजकल पूछते हैं कि ये मेडिसिन अच्छा कंपनी का है कि नहीं है. अच्छा कंपनी का है. What is generic? Generic are also good. If you know that generics are also good and very good quality medicines. But what are the difference? What is the adulterated drug? What is the misbranded drug? We have studied it in the jurisprudence. So whether we are going for the testing, of the drugs, and the drugs we are taking, listen, एक पर्टिकुलर ब्रांड मेडिसिन का होता है जिससे आप सही हो जाते हो, वो सेम मॉलिक्यूल में आप सही नहीं होते हो. देन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग दैट वन इज, दैट इज स्पूरियस ड्रग, दैट इज नॉट गुड क्वालिटी, दैट इज आप आशे करते हो उसमें ड्रग्स का क्वांटिटी नहीं मिलता है. सो व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबल, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ड्रग एनालिस्ट पर्सन्स. आप ड्रग स्टोर से सैंपल लेके गवर्नमेंट में जब आप एनालिस्ट करते हो, ड्रग एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स also responsible for that, for the quality of our medications. Then who is going to be a drug inspector? You people are going to be a drug inspector in future. Support doctors with expert medication knowledge. Yes, the role of medicine representative to provide them appropriate knowledge of the molecules and their reactions and adverse reactions, their pharmacology, that how the drugs will act in the different system of the human body, that may be central nervous system, that may be some other systems, and even the new molecules that replacing the old molecules, that thing also the pharmacists have to aware to the physician time to time. Because many molecules are coming, and who is developing that molecules? In the research and development wing, they are developing the molecules. Even the pharmacists are responsible for the designing of the drug container also. And the designer part is also, this is a separate thing completely. Empower patients to use medicine safely. Safe medicines use. The Pharmacy Council of India, this time they have particularly separate out these points. Safe use of medicines. What I am going to tell you, that if a patient feels that this vitamins is looking good for me, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ सिरप हम लेते हैं, हमें वो अच्छा लगता है तो हम उसका ओवरडोज खा लेते हैं, थोड़ा मतलब स्वीट की तरह हम उसको ले लिए. और कभी कभी लगता है कि हमने ड्रग्स में एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 2029, we have opened the drug, we have opened the bottle, then we are thinking that whether it will be expired till 29. Once we are opening, then we have to consume the drugs. Many drugs are there, ophthalmic ointments, ophthalmic drops. Once we are breaking the seals, that does not mean that whether the expiry date has been written in 2029 or 28, whatever the thing. Once you are opening, then you have to use it and throw it. And the other appropriate use of medicine, that means once our physician from OneBit Medical Group, he has told me once in a speech, he delivered that किसी पेशेंट्स को उन्होंने टॉपिकल यूज के लिए
कुछ गायनिक पेशेंट्स को उन्होंने टॉपिकल यूज के लिए एक लोशन दिया था, उन्होंने वो लोशन को समझ नहीं पाए लोशन था और लोशन को उन्होंने सिरप की तरह यूज कर लिया। सो हु इज द पर्सन बिहाइंड, किसने किसको समझाना है? मैं फार्मासिस्ट जितने भी भाई बहन यहाँ पे है और मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंट के लिए कुछ समय निकालिए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग बट द पेशेंट नोज और नॉट, दैट इज द मेन क्वेश्चन, हाउ टू टेक। नाउ नोबडी हैज द टाइम फॉर द हेल्थ इशू, किसी को हेल्थ में समस्या होता है तो वो जाता है, एंड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर कमिंग, इवन द पेशेंट डोंट नो हाउ टू ओपन द सील एंड हाउ टू रीजॉइन दैट सील। हम यूज करने से पहले उसको खोलेंगे कैसे, फिर उसको ज्वाइन करके हाउ उसके अंदर से हम कैसे डोज लेंगे। इवन द मेनी पेशेंट डज नॉट नो दैट कि आई ड्रॉप्स का बोतल को हम अगर जोर से थोड़ा सा टाइट करेंगे तब वो पेनिट्रेट होगा। पीपुल्स अभी भी क्या करते हैं, सेफ्टी पिन या नेल से उसको पेनिट्रेट करके उसको यूज करते हैं। तो इनको कभी आपने बताया है? एज ए फार्मासिस्ट आप लोग नहीं बताते, और भी ये चीज नहीं बताते कि आप वी नो व्हाट इज बीडी, व्हाट इज पीआईडी, बट द पेशेंट डज नॉट नो। तो आप उनको जब भी पेशेंट्स को मेडिसिन देते 2 मिनट आप समय लेके, अगर आपको लगता है कि किसी को टॉपिकल यूज करना है, किसी को ओरली लेना है, किसी को इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है, कोई पेडियाट्रिक डोज है, तो जरूर ये फार्मासिस्ट को अवेयर करना है कि हाउ टू यूज द मेडिसिन सेफली। The last one is that prevent risk and promote health. Promoting health, it is very necessary because nowadays we know if we are consuming some drug that have some adverse reactions, that some side effects, that having a lot of things. So consume of medicines is not like that we will consume the drugs each and every day in our life in such a way that it will be continued. We know that drug resistance is there. Drug resistance. Many antibiotics having the resistance. Why? Antibiotics proper dose we are not taking. When we are having loose motions, we are stopping the dose after taking 1 or 2 tablets of norfloxacin and ofloxacin. Whatever we are taking of that ornidazole ofloxacin we are taking and metronidazole ofloxacin we are taking. Just many patients also I have taken the feedback. उनका ये कहना है कि 2 बार में हमारा टॉयलेट सही हो गया, अगर तीसरे बार लूंगा तो ये पत्थर की जैसा हो जाएगा। So this kind of thing, I'm just telling, this kind of things will not be there in the patient's mind because the antibiotic role is to destroy the microorganism present in the intestine. So if you are taking every day also, that is not going to be like a stone. और कोई लोग कुछ बोलते हैं, जैसे इसमें ऐड करना चाहता हूं, अभी मैं ट्रैवल किया था, सर मैं तो पूरा डोज लेता हूं, एंटीबायोटिक्स का भी पूरा डोज लेता हूं और सब कुछ पूरा डोज लेता हूं, फिर हाउ द बैक्टीरिया इज गेट रेजिस्टेंट अंडर मी। मैं फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर नॉट अवेयरिंग देन फ्रॉम द लोकल जनरेशंस यू आर सफरिंग। हाउ? क्वेश्चन you put a question mark. I am telling you that I am not taking, I am a unaware person and I am not taking the proper appropriate dose, then the resistant bacteria will grow inside my body. That bacteria will be resistant to azithromycin. Let's suppose I am giving example. I have not completed the dose, that bacteria was that resistant bacteria generated in my body. Then what will happen? That bacteria will contaminate to some other person who has taken total 5 tablets or 7 tablets, but that was resistant to azithromycin, not to that particular person who has taken the dose. So मेरे में वो जो बैक्टीरिया मुझसे स्प्रेड होके आपके अंदर में गया, तो आप भी एजिथ्रोमाइसिन खाएंगे तो आपको वो काम नहीं करेगा। यही चीज हो रहा है। Some people are taking the appropriate dose, some are not taking the appropriate dose, but we the all generations we are suffering from that. So आप लोग अवेयर करिए। और मैं एक चीज बताता हूँ, इन फार्मासिस्ट डे में प्राउड टू बी ए फार्मासिस्ट, डोंट proud to tell that I am a physician, proudly tell that I am a pharmacist. आप फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट बनिए, फिजिशियन मत बनिए। That is a separate thing. Whatever I am finding out, proud to be a pharmacist. And other things are there. Now
सोसाइटी में नाउ इम्प्लांट्स आर देयर, नाउ टारगेट ड्रग डिलीवरीज आर देयर, पर्टिकुलर साइट में हम ड्रग को डिलीवरी करते हैं। इम्प्लांट्स में हम लोग 2 साल 3 साल तक बॉडी के अंदर में इम्प्लांट्स में डालते हैं। उसके साथ साथ ऑकुलर ड्रग डिलीवरी, म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी, एज वी हैव स्टडीड, पर्टिकुलर ड्रग्स जाके म्यूकस में आपका पेट के अंदर में चिपक जाता है और धीरे धीरे उसको ड्रग को डिलीवरी करता है। प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी सिस्टम, एक्सटेंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्सटेंड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, म्यूको एडेसिव ड्रग रिलीज, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वर्क ऑन दैट, be the king of the drugs, then the society will be safe and happy. So again, wishing happy Pharmacist Day. Thank you very much. Thank you very much sir for your valuable speech. और इसके बाद में हम सीधे DI मैम हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अपनी बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। हम चाहेंगे कि एक बार बबीता रानी मैम आए और अपना जो एक्सपीरियंस रहा है उससे हम लोगों को आगे हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का या फिर अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मैम आके और उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मैम का। थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी डिग्नेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सभी लोग, वन बीट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सभी लोग, हमारे प्रिंसिपल सर, दास सर और फैकल्टी मेंबर्स और अदर जो भी मेडिकल कॉलेज है या फिर नर्सिंग कॉलेज है, उन सभी के प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में दशमेश हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी अपने बीदास सर का और मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर फिर से प्रदान किया। और सबसे पहले मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोगों का जो समय मेरी वजह से वक्त ज़ाया हुआ है ना, मैं लेट आई हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा, लंच टाइम हो चुका है, अधिकतर लोगों को भूख लगी होगी, पेट में चूहे कूद रहे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बेटा। आज हम लोग यहाँ पे फिर से उपस्थित हुए हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके उपलक्ष्य में उसको मनाने के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्र हुए हैं। क्या है फार्मासिस्ट डे बताइए? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों मनाते हैं हम लोग? फार्मासिस्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके दायित्व, उनका रोल या उनके कर्तव्य कि कहीं कोई भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, जो वो करते हैं उसका कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। उसकी एक अहम भूमिका है। बिना फार्मासिस्ट के जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके लिए हम नहीं सोच सकते। आप यहाँ पे फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद कुछ आवर्स में आप लोगों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती होगी फार्मेसी में। आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी टाइम आता होगा कि 24 आवर्स की भी ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी कभी आपको 2-2 दिन सोना भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको करना पड़ता है और आप करते हैं, उसको ऑनेस्टली करते हैं। बिकॉज आपके सामने जो होता है ना, वो आम आदमी के सामने नहीं होता है। आपके सामने जो बीमार व्यक्ति आता है या हॉस्पिटल में एडमिट है या आपके फार्मेसी के काउंटर पे कोई आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई परेशान आता है,
भाई हॉस्पिटल में आदमी क्यों आएगा, परेशानी में ही आएगा ना, बीमारी में ही आएगा वो, तो उसको देख के आप मना नहीं कर सकते। यदि वो रात के 12 बजे भी आ रहा है हॉस्पिटल में और वो उसने फार्मेसी पे नॉक किया है आके, तो आपको उठना पड़ता है, आपको दवा देनी पड़ती है। और वो दवा ये नहीं कि हम किसी भी तरह से दे दें, हमें अपनी आंख नाक कान खोल के स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उसको देना होता है, उसको समझाना होता है, उसको बताना होता है। डॉक्टर का काम है, पेशेंट आता है, उसकी डायग्नोज की, प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया, दे दिया, नेक्स्ट स्टेप पे वो फार्मेसी पे जाता है पेशेंट। आप मुझे ये बताएंगे कि कितने लोग डॉक्टर का पर्चा पढ़ सकते हैं? अमूमन जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो राइटिंग होती है उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते, आम आदमी नहीं पढ़ सकता, बिकॉज वो जो राइटिंग होती है वो इतना फास्ट मूविंग कहो या कुछ भी कहें, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद 10% डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो कैपिटल लेटर्स में और नीट एंड क्लीन बिल्कुल उनकी राइटिंग जो है वो रीडेबल है, वो ब्रांड नेम लिखा है या उन्होंने जेनरिक लिखा है या सॉल्ट का कोई ऐसा नेम दिया है जिसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे फार्मासिस्ट उसको इजीली पढ़ लेते हैं। जब वो फार्मेसी पे वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है तो वो उसको इजीली पढ़ के वही दवाई निकालते हैं जो उसको देनी है। उसके बाद उनका क्या रोल है, उनको एडवाइस करना होता है उस पेशेंट को, बिकॉज कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका मॉरल सपोर्ट भी डाउन होता है। आप उसको इस तरह से उसकी काउंसलिंग करें या करते भी हैं। मैंने कई बार मैं जाती हूँ हॉस्पिटल्स में विजिट के लिए, मैंने देखा भी है बहुत अच्छे फार्मासिस्ट हैं हमारे यहाँ जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। उसको बताना होता है, उसको उसका मार्गदर्शन करना होता है कि आपको ये और इरिटेट भी नहीं होना होता है। हर वो व्यक्ति जो पेशेंट के रूप में आता है, ये मान के चलिए कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए हमारे फार्मासिस्ट के पास पेशेंस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। आपको इरिटेट नहीं होना है। यदि वो 4 बार एक बात को पूछता है, हाँ ये है कि आपका वक्त लगेगा, हो सकता है लाइन में 10 लोग और खड़े हों, बट उसको बताना है, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने क्या सीखा जब हमने पढ़ाई की, हमने हम फार्मासिस्ट जो ओथ लेते हैं उसमें क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, वही यही इस चीज का हमें ध्यान दिलाती है कि हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, उसको बताना है। जैसे सर ने भी बताया, दास सर ने भी बताया, मुझे लगता नहीं कि सर ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है बताने को। वो ड्रग ओडी लेनी, बीडी लेनी, टीडीएस लेनी, हाँ बिफोर मील लेनी या आफ्टर मील लेनी है, एक टैबलेट है या हाफ है या सिरप है या सस्पेंशन है, तो उसकी अमाउंट कितना है, 5 ml है या 10 ml है, बॉडी वेट या फिर अकॉर्डिंग टू एज। डॉक्टर ने तो लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन पे, लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी है। जनरली अस्पतालों में मैं देखती हूँ तो वो लोग अपने एनवेलप को प्रिंट करा के रखते हैं। अगर सुबह खाली पेट वाली दवाई है तो वो उसी एनवेलप में डालेंगे जिसपे लिखा होगा सुबह खाली पेट, तो हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो उस पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर वो खाने की बात की है या दिन में 2 बार है या दिन में 3 बार है, तो वो उसी एनवेलप में डाल के देते हैं। तो ये बखूबी अपना फार्मासिस्ट अपना रोल निभाते हैं। और एक चीज और है, जब मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे हूँ, लास्ट ईयर जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, तो जैसे मैं फील्ड में भी जाती हूँ, मैं देखती हूँ हमारे अधिकतर फार्मासिस्ट ही अब लाइसेंस होल्डर हैं। इवन शहरी क्षेत्रों में तो अधिक मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी थोड़ी सी कमी है। तो वहाँ पे एक चीज वो लोग भूल जाते हैं, जो डिफरेंस है डॉक्टर के और फार्मासिस्ट के बीच का, वो डिफरेंस नहीं भूलना चाहिए। मैं अधिकतर लोगों को समझाती भी हूँ
और बताती भी हूँ, और जहाँ थोड़ा ज्यादा टाइट होके बोलना पड़ता है तो उनको बोला भी जाता है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर ही रहेगा, आप हैं। आप अपने फार्मासिस्ट होने पे गिल्टी फील ना करें, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद को डॉक्टर से कम ना आके बट डॉक्टर ना समझें। होता क्या है इंटीरियर्स में, वो ठीक है, मानते हैं कि बहुत ज्यादा सुविधाएं कहीं नहीं हो पाती हैं डीप इंटीरियर्स में, तो आप उसको कन्विंस करके हमारी CHCs PHCs पे रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। ड्रिप भी लगा देंगे, इंजेक्शन भी लगा देंगे और सर्जरी भी कर देंगे। अभी जल्दी की ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, ये तो आप लोग तो अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको अभी कंप्लीट करने के बाद जब आपका काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे, उसके बाद की बात है। लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो आपको बता रही हूँ। अभी हमारे जनपद लखीमपुर में जल्दी ही 4 से 5 केसेस ऐसे देखने को मिले जहाँ पे यही सब हुआ कि फार्मासिस्ट ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको ये तो अननोइंगली इसको नहीं पता चला कि कौन सी मेडिसिन से उसको साइड इफेक्ट हुआ और वो चले गए, चल बसे। 3 से 4 केस अभी ऐसे आए हैं जल्दी। अब उनकी कंप्लेंट आती है, अब उनकी कंप्लेंट में सीधे सीधे आरोप होते हैं कि हमारा पेशेंट मार दिया गया, जानबूझ के मार दिया गया। अब ऐसे में क्या किया जाए? उसको पूछते हैं, उसने कोई बिल नहीं दिया होता है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और सामने वाले पर्सन ने उनकी FIR भी इवन लॉन्च कराई, संबंधित थाने में उनकी FIR भी कराई, और वो पर्सन अरेस्ट होने के बाद 1 महीना जेल भी रह के आए। जब हमें पता लगा तो हमें खराब भी लगता है और दुख भी होता है कि हमारे ही कैडर के लोग और उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, भविष्य में ऐसा मत करना, एक बार सीख मिली है, दोबारा ऐसे मत करना। आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट बनिए, कॉन्फिडेंटली फार्मासिस्ट रहिए। आप केवल एडवाइस करिए, आता है आपके यहाँ, आप उसका ट्रीटमेंट अपने उसमें लेकर ट्रीटमेंट ना करिए, ताकि वो कल को कोई आरोप प्रत्यारोप आप पे लगा सके, ऐसी कोई कंडीशन ना आए। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग से ही अपना माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है। आप लोग दूर दूर से यहाँ पे 1 वीक में एडमिशन लिए हैं, पीछे लोग बातें कर रहे हैं। आप लोग भूख लग रही है क्या? बंद कर दें? आप लोग दूर दूर से आए होंगे पढ़ने, आपके लखीमपुर जनपद का ये सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज है। मैंने लास्ट ईयर भी यही कहा था, और मैं जहां भी जाती हूँ, इवन लखीमपुर में ही नहीं, मैं लखनऊ भी जैसे हम लोग जाते हैं मीटिंग्स वगैरह में, मैं वहां पे भी सब जगह मैं 1 बीट की तारीफ करती हूँ। मुझे लास्ट टाइम जब मैं आई थी, सर ने दिखाया था हॉस्टल्स वगैरह, मेस वगैरह, बखूबी मतलब प्रशंसा के योग्य है। तो मैं आपकी फैकल्टी से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैनेजमेंट इतना हर चीज कर सकता है तो वो फैकल्टी भी निपुण होगी, उनकी योग्य होगी। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग 1 बीट में हैं। ऐसा ही एक कॉलेज, मैं इस जॉब में आने से पहले एकेडमिक्स में थी, ऐसा ही एक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज की जो फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ पे उसका भी सेम मैंने देखा है। डिसिप्लिन्ड, एकेडमिक्स, हर चीज में वो टॉप पे रहता है। तो अपने पे गर्व करिए, अपने को भाग्यशाली समझिए, और उसके साथ साथ अपने एक गोल बना के चलिए। मैं देख रही थी अभी वो जो प्रेजेंटेशन चल रहा था ऑनलाइन, GDC था, क्या था वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है
आप लोग इस मतलब सिनेरियो के स्टूडेंट हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं। हमारे समय में ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं थी पढ़ने के लिए। कुछ किसी टॉपिक पे कुछ डाउट होता था, या तो फैकल्टी या कॉलेज के बाद केवल लाइब्रेरी, कुछ और ऑप्शन नहीं था। उस समय मोबाइल भी नहीं थे। आप लोगों के सबके पास एंड्रॉइड फोन होगा, सबके पास ऑनलाइन क्लास लेने का अवसर है, तो इस अवसर को जाने ना दें। अपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे रोक के उसको ज्वाइन करिए और उससे गेन करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी ट्रिक्स वो बताते हैं ऑनलाइन स्टडीज में, बहुत सारे आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो उसे ज्वाइन करें और अपना एक गोल बनाइए, अपना एक एम बनाइए कि मुझे जो भी है वॉट एवर इट इज, आप प्राइवेट में जाना है, सेक्टर में जाना है, आपको पीजी करना है, आपको एमफॉर्म करना है, या आपको एमबीए करना है, जो भी आपका जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको सेट करिए और मेहनत करिए। अभी मैं लास्ट ईयर सजन कॉलेज में गई थी, वहाँ पे 2 स्टूडेंट, एक नाइपर में सेलेक्ट हुआ था, एक बीएचयू में हुआ था। अच्छा लगा देख के, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि वहाँ से ज्यादा अच्छी फैकल्टी आप लोगों के पास है, तो उनसे सीखिए, उसका लाभ उठाइए, उसका लाभ उठाइए। आपके प्रिंसिपल सर इतने एक्सपीरियंस पर्सन हैं, उनसे लाभ लीजिए। इस समय को ऐसे व्यर्थ ना करें, जाया ना करें। ये समय लौट के नहीं आता है। इस टाइम में अगर यदि आपने मेहनत कर ली तो आपका जीवन कामयाब हो जाएगा। और ड्रग इंस्पेक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगता है, हमें भी लगता था। जब मैं हम लोग बी फॉर्म करने गए थे तो हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या बनना है। आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल में गूगल खोल के फटाफट देख लेते हो कि व्हाट इज स्कोप ऑफ फार्मेसी। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, जो हमारी फैकल्टी ने बता दिया। और फैकल्टी से इतना डरते थे, आप लोग तो साथ में घूमते फैकल्टी के, इतना डर, इतना खौफ होता था उस समय फैकल्टी का। कभी आपको मौका मिले तो मिस्टर सर्राफ लखनऊ एनआईसी में हैं, मिस्टर शालिन सर्राफ, वो हमारे हेड थे, और मिसेस शुभिनी सर्राफ उनकी वाइफ, बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे बोल लें जाके, उनके चैम्बर में कुछ पूछने चले जाएं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर बनना कोई टफ नहीं है बेटा। आप सपने तो देखो, देखना तो आपको ही है ना, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। और जब आप कामयाब होते हो, आप पे आपके पेरेंट्स, आपका कॉलेज, आपकी फैकल्टी को गर्व होता है। उनका सम्मान बढ़ जाता है, आप ये लगा लीजिए। और आपका कॉन्फिडेंस, आप एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके देखिए, फिर देखिए आपको ना ये लगे कि मैं चार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लियर कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन एक को करने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप करेंगे, आज फार्मासिस्ट डे है, आपका दिवस है, फार्मासिस्ट के सम्मान का दिवस है। आप लोग मैं नहीं कह रही कि आप ओपनली ऐसा कुछ कहिए, कोई कमिटमेंट करिए, अपने मन में एक सोच बनाइए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मैं कर सकता हूँ। करेंगे आप लोग? करेंगे? हाँ नहीं आ रही है। ठीक है, करिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। और सिलेबस सारा वही रहता है जो हम 4 साल में पढ़ते हैं। ठीक है, बस एक जीके के क्वेश्चंस कुछ होते हैं, वो आते हैं। आप सर ने भी बताया और वो मैं सुन रही थी, उन्होंने भी बताया, जो सेकेंड ईयर से जहाँ हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं उन पे फोकस करिए। आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब कुछ वहीं से मिलेगा। एमसीक्यूज वहीं से मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे, इवन इंटरव्यू भी उसी से होगा, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। आप कंप्लीट करिए। यहाँ पे शायद डिग्री के भी स्टूडेंट्स होंगे ना, बैचलर,
हाँ, फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद आप अपना यहाँ से डिग्री मिलने के बाद, यूनिवर्सिटी कौन सी है सर? हाँ, वहाँ से उसके बाद फार्मेसी काउंसिल यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अप्लाई करिए, सब ऑनलाइन है, कहीं नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपके घर बैठे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। आप यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं पीजी करिए, तैयारी करिए, और यदि आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ट्राई करना है तो किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करिए। 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस लें आप, प्रोडक्शन का या क्यूए क्यूसी का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप जॉब करिए, उसके बाद यदि आपको लगता है कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस इनफ है, मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ। सेंट्रल से भी बहुत वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल से भी ज्यादा निकलती है, स्टेट की वैकेंसीज कम रहती हैं, अदर स्टेट्स की भी वैकेंसीज रहती हैं। आप ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं, यूपीएससी से वैकेंसी आती है, आप उसको सर्च करिए, ऑनलाइन फॉर्म डालिए, जॉब करना है जॉब में रहिए, पीजी करना है पीजी में आ जाइए, पीजी ज्वाइन करिए। पीजी कंप्लीट करने के बाद आपको आरएनडी में जाना है, आरएनडी में जाइए, एकेडमिक्स में आना है, एकेडमिक्स में आइए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के डालने के बाद एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है, साल लग जाए 2 साल लग जाए। स्टेट की बात बता रही हूँ, 9 में फॉर्म भरा था तो 12 में सिलेक्शन हुआ था, तो उस पीरियड में एकेडमिक्स नहीं रही थी। ठीक है, उसमें पेशेंसफुली हम अपना तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आने में देर नहीं लगती है आयोग से, रिजल्ट तो विद इन 1 मंथ रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे से, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर कहलाते हो। ठीक है, आयोग से रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लिस्ट शासन में आती है, आपके घर वेरिफिकेशन के लिए लेटर आता है, वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ये दुनियादारी होकर डॉक्यूमेंट्स की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद आप विभाग में पहुंचते हो, आप ज्वाइन करते हो, रिपोर्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग आपको फील्ड में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, या आपको किसी इंडस्ट्री में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है कि आप देखिए, समझिए, इंस्पेक्शन करिए, रिपोर्ट बनाइए, या आपको किसी फार्मेसी पे ले जाके या किसी हॉस्पिटल में जो फार्मेसीज होती है हमारी, वहां ले जाके खड़ा कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे देखिए, समझिए क्या है, क्या कमियां हैं और क्या इनकी अच्छाइयां हैं, दोनों को मेंशन करिए। इस तरह से 2 या 3 महीने की हमारी कुछ एकेडमिक्स के भी सेशन चलते हैं, वो होती है, ट्रेनिंग होती है, और आपको छोड़ दिया जाता है, अब आप करिए। उसके बाद आपकी कोई भी गलती अक्षम्य होती है। वो कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा पेंसिल से लिखता है ना 3rd 4th क्लास तक, तो उसको बड़ा शौक होता है पेन से लिखने का, वो इधर उधर से ले लवा के घर में बड़े भाई का, बड़ी बहन का पेन से लिखना, उसको ये नहीं पता होता कि मेरी पेन की लिखी गलती मिटाई नहीं जा सकती। जब तक वो पेंसिल से लिखता है तब तक उसकी हर गलती को मिटा सकता है, वो गलत लिखे को मिटा सकता है। जब पेन से लिख दिया तो कैसे मिटाएगा? वही उसी स्टेज पे आप आके खड़े होते हैं, फिर अब आपके हाथ में पेन दे दिया जाता है और इरेजर नहीं होती है, तो आप गलत करेंगे तो स्वयं जिम्मेदार होंगे और सही करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी, आप अप्रिशिएबल हैं, बहुत अच्छा किया। हो सकता है आपको 2-4 प्रशस्ति पत्र भी दे दिए जाएं विभाग से। ठीक है, तो ये एक जर्नी है, लेकिन स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक मेहनत आपको ही करनी है। मैं उसमें भी सुन ली थी, सर ने भी बताया, आपकी मेहनत केवल आपके काम आएगी, ना आपके फ्रेंड के काम आएगी, ना आपके भाई के काम आएगी, ना आपके पेरेंट्स के काम आएगी, ना आपकी फैकल्टी के काम आएगी। आपकी मेहनत आपकी ही होगी। वो कहते हैं ना, विद्या का जो धन है वो बांटने से बढ़ता है, लेकिन ये ऐसी मेहनत है जो आप कमाओगे वो आपकी ही होगी।
आने वाले समय में वो आपको सुख देगी। ठीक है, मेरी बात यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आई हो तो आज एक वादा करते हैं कि हम कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे और वन बीट का नाम रोशन करेंगे। वन बीट का नाम रोशन करिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? या मैं फिर से एक बार सभी इतने यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, सभी को वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपको 2 लाइनें कहना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया आने में थोड़ा लेट हो गया, जैसा हमारे गुरुजी ने हम लोगों को कल ही बता रखा था। सबरी माता को सिर्फ बताया गया था कि जो है श्री राम जी आएंगे, ये नहीं बताया गया था कि कब आएंगे। तो हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि आप आने वाले हैं, लेकिन जैसे आपके पास इतने सारे काम रहते हैं तो आने में थोड़ा सा लेट हो गए। वो हम लोगों को पता था कि आप लखीमपुर से चलेंगे, रास्ते में आपको और भी काम हो सकते हैं, तो धीरे धीरे उसके इंतजार में हम लोगों ने ये टाइम बना रखा था कि आते आते यहाँ तक कितना टाइम हो जाएगा। और जैसा आपने बताया कि आज दूसरी बार वन बीट में हमें बुलाया गया है, हम अभी बुलाने की ये शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आप जैसा ज्ञान रूपी सागर जब एक बार आए, एक पत्थर उस सागर में पड़ा, दूसरी बार आए 2 पत्थर सागर में पड़े, ऐसे ही आप जब बराबर हमारे कॉलेज में आके कॉलेज को कृतार्थ करते रहेंगे, एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि हमारे इस सेतु पे उन पत्थरों से, ज्ञान रूपी पत्थरों से जो है सेतु बनेगा और उस सेतु पे चल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसके बाद में मैं सीधे इनवाइट करूंगा अमित पाल सर को, जो हमारे वन बीट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। वेलकम, एक बार अमित सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारा काम आप बखूबी कर रहे हैं। और सबसे पहले सभी को, प्रांगण में उपस्थित सभी को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद अर्पित करता हूं मैम को कि आप बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ आए। और जैसा भी प्रोग्राम में हो रहा था कि बताया जा रहा था कि आप कैसे तैयारी करेंगे, एक्चुअल में ये पूरा प्रोग्राम जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए किया गया कि आप कुछ कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में कितने स्कोप हैं, आप कहां तक जा सकते हैं। तो लिमिट तो कोई है नहीं कि आप कहां तक जा सकते हैं, लेकिन वो आप तभी जा सकते हैं जब आप सपने देखेंगे। अगर जो आपने सपने देखने शुरू कर दिए तो उसके बाद में आता है कि उन सपनों को पूरा कैसे करना है। पहला काम है सपने देखना। अगर जो जिस तरीके से आप 12th में जब थे, कभी स्कूल गए कभी नहीं गए, कुछ किया कुछ नहीं किया, कुछ वर्क छूटा रह गया, सुबह 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सीरियसली उसको पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको अब भी अगर जो ऐसा कर रहे हैं तो वही मिलेगा जो तब मिला था। अगर जो आपको कुछ अलग चाहिए तो उसके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता जो है वो कोई एक मंजिल नहीं है, सफलता जो है वो आपके यात्रा। आपको बराबर मेहनत करते रहना पड़ेगा तभी आप सक्सेस होंगे। अगर जो ऐसा ना होता तो दुनिया में सभी लोग सक्सेस होते, सभी लोग सफल होते। क्यों? गिने चुने लोग हैं, क्योंकि वो गिने चुने लोगों ने सपना देखा, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और उस लक्ष्य के लिए मेहनत की। तो जब आप अलग सोचकर मेहनत करना शुरू करेंगे तभी आप अलग निखर कर आएंगे। और यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने फार्मासिस्ट और जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी में असीम क्षमताएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसमें क्षमताएं ना हो। बस ये जरूरी है कि अपनी क्षमताओं को जानना और उन क्षमताओं का यूज करना। ये सब खेल माइंडसेट का है केवल।
अगर जो अपने आप को, अपने माइंडसेट को आपने चेंज कर दिया तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर जो अपने माइंडसेट को आपने कह दिया कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब हम कुछ अच्छा करने चलते हैं हमारे साथ ही गलत होता है, भगवान भी कहेगा तथास्तु, जाओ आपके साथ वैसा ही होता है जैसा आप सोच रहे हैं। ईश्वर आपके साथ कुछ करने नहीं आएगा, वो केवल आपको एक संकेत दे सकता है कि बेटा हमने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, आप इसको पहचानिए और इसको अचीव करने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। अगर जो आप वो पहचान करके उस पर मेहनत करना शुरू कर सकते हैं तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोगों की यही कामना है कि जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सभी कामयाब हों, हमारे वनबीट संस्थान का नाम रोशन हो और इस तरीके से हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। जिस तरीके से अभी हम डी फार्मा से शुरुआत किया था, बी फार्मा लेके आए, आगे एम फार्मा की प्लानिंग चल रही है, तो जल्द ही हम इसको यूनिवर्सिटी में बदल पाए, उसके लिए आप सभी का जो है सफल होना बहुत जरूरी है। आपकी सफलता, हमारी सफलता दोनों साथ साथ चलेंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे। और पुनः जो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर की तरफ से शुभकामनाएं, हमारे बीच में ऋचा मैम है उनकी तरफ से, और मतलब मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाके ये सबको जो है शुभकामनाएं देना मेरी तरफ से। तो मैं बड़ा भार लेके आया था, उसको मैं हल्का कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप ये मान लो, आपको अभी लगता होगा कि हम जो है कुछ कमजोर हैं या हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी है, खासकर बी फार्मा के लिए ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। किसी ने कहा था कि नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस समंदर से एक जीत की सुहानी हवा आती तो है, और जरा जलाकर देख लो हौसले का चिराग, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। कभी ये मत महसूस करना कि हम कमजोर हैं, कभी ये मत महसूस करना कि हमारे अंदर वो प्रतिभाएं नहीं हैं। अगर जो ऐसा होता, अगर जो सुविधाओं से लोग महान बनते तो अर्जुन जो है दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होता, एकलव्य नहीं होता। एकलव्य के पास दृढ़ संकल्प था, डिजायर बर्निंग थी, वो एक ऐसी चिंगारी जो उसको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बना दिया। तो आपको भी अगर जो आगे बढ़ना है तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य विहीन नौका जो है कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। जब तक आपको पता नहीं कि किस किनारे पे हमें जाना है, तब तक आपकी नाव किधर जाएगी उसका आपको पता नहीं है। तो आप पहले अपना किनारा ढूंढो कि किस किनारे पे जाकर के लगना है, तब आपको पता चलेगा कि हमें लहरों से टकराना है। क्योंकि लहरों, जैसा मैम अभी बता रही थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो जरूर है कि आप कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच, पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसा सर ने बताया हम लोगों को कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और साथ ही सर कह रहे थे कि आप बखूबी हमारा काम निभा रहे हैं। तो उसके लिए अभी सर ने गुरु और शिष्य की बात कही। जब एक शिष्य को सही गुरु मिल जाता है तो फिर वो शिष्य उस काबिल बन ही जाता है कि अपने गुरु का काम बखूबी निभाने लगे। उसके लिए अमित सर को बहुत बहुत थैंक यू कि उनसे ही सीख के आज हम जो है उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद में समय को देखते हुए बहुत ज्यादा ना कहेंगे, एक स्कैनर हम लोगों के ग्रुप में अभी एक स्कैनर पहुंचेगा कि आज जो भी यहाँ पे वेबिनार में पार्टिसिपेट हुए हैं लोग, वो सभी ई सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको स्कैन करेंगे और अपना फॉर्म भर के गूगल लिंक के थ्रू हम लोग अपना ई सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग स्टेज पे आके और हमारे फार्मासिस्ट स्टाफ को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बार स्टेज पे आ जाएं सभी लोग। जीएम सर, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, सभी लोग।
काम करें, ऑल द फार्मासिस्ट सबको ऐसे ही बुलाते हैं, सब फार्मासिस्ट आइए, उसके बाद सारे फार्मासिस्ट जो है अपना कॉलेज उसके पहले हॉस्पिटल को नाम कोई बात नहीं है, ये ऐसे जैसे अरे ये सर्टिफिकेट को आपको जो भी हॉस्पिटल से हमारे बीच में जितने फार्मासिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो सभी लोग स्टेज पे आ जाएं। हॉस्पिटल स्टाफ से जितने भी फार्मासिस्ट यहाँ पे आए हैं, दुर्गेश जी, राम मोहन जी, विपिन जी, सर्वजीत, मुकेश, पिंकी और सभी लोग, मतलब जो भी साथ में हैं सभी लोग एक बार, हमसे नाम नहीं छूट जाए लेकिन आप लोग जरूर आए। विपिन, तालियां बजाते रहिए सभी लोग। इसी के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि जब गिफ्ट बटे तो तालियां सभी को बजानी है, और खाना उसके बाद इसी आधार पर मिलेगा, जितनी तालियां उसी हिसाब से थाली में चावल मिलेंगे। ठीक है, तालियां बजाते रहिए एक बार सभी लोग। ये पिंकी है सर, मैं इसके बारे में बताता हूँ यहाँ तक कैसे पहुंची। ये एक घर में समझो काम करती थी, अचीवमेंट देखिए आप इस लड़की का। और मैं रात में 9:30-10 बजे उस घर पे पहुंचा। जो घर के मालिक थे उनको मैंने मोटिवेट किया कि ये लड़की पढ़ने में अच्छी है, पानी लेके आई थी उस समय। तो मैंने कहा ये लड़की इतनी अच्छा पढ़ने में अच्छी है तो क्यों ना हो कि आप इसको पढ़ा दें। तो बोले कितना पैसा लगेगा, ये उस समय की बात है 2019-20 की बात। उनसे आग्रह किया और मैंने कहा कि अगर जो आप लगा देंगे कुछ फीस मैं लगाता हूं, और लेकिन इसको पढ़ा जरूर दीजिए। उन्होंने आग्रह स्वीकार किया और आज ये फार्मासिस्ट है और इसने करके दिखाया। कांग्रेचुलेशन। राजेंद्र जी मंच पे आ जाए। मुकेश ऐसा लग रहा सब लोग रात में नवरात्रि का जागरण देखने जाते हैं तो थक गए हैं, हाथों में जान नहीं बची है। अरे तालियां बजाते रहो, लास्ट टाइम में। यही दिन देखने के लिए तुम सब फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हो और उसमें भी तालियां ना बजाओ। हिमांशु हिमांशु, सचिन, सभी स्टाफ मेंबर फार्मेसी कॉलेज से।
मनोज कुमार, विनोद सर। एक बार रचित सर के लिए जोरदार तालियां। रचित सर को आप प्रिंसिपल से सम्मानित करेंगे स्टेज पे बुला के। थैंक यू सर। अनूप सर एक बार स्टेज पे जाएं। अनूप सर। So I would like to announce that अभी अमित सर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन बने, पहले फार्मासिस्ट बन चुके थे, तो उनको बोलूंगा वो चीफ गेस्ट से। और उनके शिष्य मंजेश भी पहले फार्मासिस्ट है। अब बबीता रानी मैम से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में हमारे सबसे मेन रोल निभाने वाले प्रिंसिपल सर फार्मासिस्ट उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि मैम एक बार उनको जो है सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां प्रिंसिपल सर के लिए। कोई भी अगर नहीं, हाँ। Now I would like to inform that on behalf of OneBit College of Medical Science and OneBit Management, we are going to give the memento and shawl to our respected chief guest. इसी के साथ में हम आपको आने वाले फार्मासिस्ट 2026 में आपको इनवाइट भी कर रहे हैं। From OneBit College of Medical Science Pharmacy College, we are going to give a token of love to our management, all the respected members present over the stage. So I would like to request to felicitate them with the gift and gift.
एक बार हमारे बीच में हमारे राजदीप सर, HR सर और रिचा मैडम प्रिंसिपल मैम है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। स्पेशली थैंक्स टू राजदीप सर कि चेयरमैन सर के यहाँ पे ना होने पे हम लोगों को इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हम लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और जो भी देख रेख कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें राजदीप सर का। एक बार सभी फार्मासिस्ट बंधुओं से निवेदन है कि स्टेज पे आए फोटो सेशन के लिए। जसप्रीत जी। हॉस्पिटल स्टाफ, फार्मासिस्ट सभी लोग एक बार स्टेज पे आ जाएं। हॉस्पिटल स्टाफ। ये हमारे बीच में वही चेहरे हैं जो हम लोगों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची के विज्ञान को समझाते हैं कि उसमें कौन सी दवाई लिखी गई है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद कॉलेज स्टाफ से निवेदन है कि सभी लोग स्टेज पे आ जाएं। आज टीचिंग नॉन टीचिंग देख के नहीं, आज सभी फार्मासिस्ट हैं। नॉन टीचिंग भी फार्मासिस्ट है और टीचिंग भी फार्मासिस्ट। ये एक बहुत अच्छा दिन है आज का। ये भेदभाव खत्म हो जाता है यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग का। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में सभी कॉलेज स्टाफ उपस्थित है उनके लिए। बस अब वो घड़ी दूर नहीं है जब आप लोग यहाँ से छूटने वाले हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करके आप लोग कभी तालियां बजाते रहें। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आप लोगों को छोड़ दिया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद कुछ बाकी? आपसे 2 मिनट की शांति और चाहते हैं। हाँ, मतलब मौन नहीं चाहते 2 मिनट का। बहुत ज्यादा ना कह के हम लोग इस प्रोग्राम को मतलब पूरा कर चुके हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम लोगों के ग्रुप में यहाँ पे भी स्कैनर नहीं दिख रहा है, सबके ग्रुप में एक स्कैनर चला जाएगा जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आज का जो वेबिनार हुआ है, जो आप लोग देख रहे थे, जो मीटिंग चल रही थी, उस पे हम लोगों को एक ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सभी लोग सर्टिफिकेट को स्कैन करके और अपना ई सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। ये आपके सामने सर्टिफिकेट है। अभी थोड़ी देर में सभी के ग्रुप में चला जाएगा। सभी स्टूडेंट, स्टाफ जो भी चाहें वो अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस 2025 पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो आयोजित किया था वो समापन की ओर है। और यहाँ पे आए हुए सभी मेहमान हमारे बीच में ड्रग इंस्पेक्टर DI बबीता रानी मैम जी हैं, स्पेशल थैंक्स। और उसके साथ में हमारे साथ में जनरल मैनेजर कुंवर राजदीप सिंह जी हैं और साथ में AGM रिचा मैम जी हैं। प्रिंसिपल सर फार्मेसी से हैं डॉक्टर विश्वजीत दास सर, जिनके अनुभव से और हम लोग आज आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्हीं की जो है छत्र छाया में ये कार्यक्रम हो रहा है। और साथ में हमारे बीच में विमला मैम है, प्रिंसिपल नर्सिंग। HR सर हैं हमारे बीच में, गुरपाल सर। और हमारे बीच में हॉस्पिटल नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्टाफ रजविंदर मैम है, परविंदर मैम है। हमारे बीच में नवज्योति मैम जो कि लीगल कंसल्टेंट के रूप में हमारे यहाँ पे भी एज ए मतलब हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे साथ में सभी टीचिंग स्टाफ, बलजिंदर मैम, अर्चिता मैम, दर्पण मैम, मतलब सभी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित।
जिनका हम नाम नहीं ले सके हैं उनको स्पेशली थैंक्स। और आईटी डिपार्टमेंट से हमारे बीच में लोग हैं, फार्मेसी स्टाफ सभी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट स्टाफ, जसप्रीत कैमरामैन हमारे, मनविंदर सिंह, और जहां बैठ के आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो हमारा जिसका नामकरण अमितपाल सर ने किया था, तोड़फोड़ डिपार्टमेंट, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पे मौजूद था, अभी नहीं है। तो ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई, फ्रेंड्स और जूनियर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने यहाँ पोस्टर प्रेजेंटेशन किए थे, जो कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसका प्रेजेंटेशन हो चुका था। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रही और उसमें खासकर जो पॉइंट्स थे, जो टॉपिक्स लिए गए थे, वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स थे, जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग अप्रूवल्स, और पॉइंट था द इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स ऑन हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और करंट ट्रेंड्स एज वेल एज फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, उस पे एक टॉपिक था। एंड लास्ट वन था नैनो टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न मेडिसिन। तो इनमें जो ग्रुप थे, ग्रुप सी, डी, ई, एफ एंड जी। कोई कहीं पर किसी को लगता है कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट आएगा, कौन सा थर्ड बताएगा कोई? ओके, तो मैं अनाउंस करता हूं नाम जो इसमें विनर्स हैं। थर्ड पोजीशन हासिल किया है ग्रुप एफ ने। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं अपनी इस जगह पे। थर्ड पोजीशन ग्रुप एफ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। आ जाएं सामने। सेकेंड वन, दूसरा स्थान जाता है ग्रुप डी को, एंड टॉपिक वाज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग अप्रूवल्स। एक बार जोरदार तालियां। आ जाएं, कहां पे? एक बार खड़े जरूर हो जाएं सभी लोग। ग्रुप डी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। अब आते हैं नंबर फर्स्ट की। तो पहला स्थान हासिल किया है ग्रुप ई ने। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। द इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग ऑन हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज। एक्चुअल में टॉपिक जो है उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितनी इम्पैक्टफुल आपकी प्रेजेंटेशन थी, और खासकर उसमें लास्ट में आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने खुद कहा था कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप विनर हैं और आप इसके लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं। बधाई हो बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का समापन करते हैं और आगे की जिम्मेदारी संचालक महोदय। तो जहां तक हम लोग समाप्त कर चुके थे, सभी को थैंक यू बोलते बोलते साथ बीच में हमारे बीच में सुशीकरण सर हैं, एनी मैम भी थी, अभी तक वो शायद चली गई है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट बैठे हैं हमारे बीच में, उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम लोग एक बार फार्मेसी कॉलेज विजिट करेंगे, सभी टीचर्स और गेस्ट जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने कुछ पोस्टर्स तैयार किए हैं, तो पोस्टर कंपटीशन में हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। उसके लिए सभी से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। सभी बच्चे भी कॉलेज में पहुंचेंगे और सभी स्टाफ। थैंक यू वेरी मच।